So most welcome all of you in this invited lecture series 2, lecture 4th by Mrs. Romana Kamal from Jammu and Kashmir. It is over to you, Dr. Sunita. Thank you very much, sir. Good morning to each and every person who is present here. A very special welcome to our speaker, Dr. Romana Kamal from Jammu and Kashmir. I welcome you, ma'am. I welcome all the members of the organizing committee, convener of the lecture series, Dr. Adarsh Pandey ji, Dr. Co-convener, Dr. Ramesh Chandra ji. I welcome you all once again. Before we start the lecture series, I would like to say a few words about our guest speaker, Dr. Rumana Kamal. She is an assistant professor in the Department of Zoology, Government Degree College, Kishtwar. She is MSc MPhil. She has published 12 research papers in national and international journals of repute. She has more than 10 years of teaching experience. Ma'am, with these words, I hand over to Dr. Romana Kamal. Ma'am, please deliver your lecture on chromosomal aberrations. Welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, and good morning to everyone. And I'm very much thankful to SRBS Society for giving me. Ma'am, ma'am, your voice is not audible. Morning, ma'am. Is it audible now? अब audible है. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. That was such a nice introduction. And good morning to everyone. I'm very much thankful to SRBS Society for giving me such an opportunity to be here and to interact with all of you. And special thanks and appreciation for Dr. Adarsh Pandey. He is being so active in academics and is motivating others also. That is really a wish for all of us. Thank you. Now moving towards my topic of today, which is about chromosomal aberration. I want your permission to start to screen share now. Chromosomal aberration. Before going towards the topic, chromosomal aberration, I must say two words about the chromosome. Ma'am, your voice is not clear. It is not audible. Okay, sir. आप थोड़ा माइक अपने पास में लेके आइए और अगर कुछ आसपास चल रहा हो पंखा वगैरह तो उसको बंद कर दीजिए. Am I audible, sir, now? वो completely audible तो नहीं है लेकिन चलिए फिर भी गनीमत है. Chromosome, we know that these are present inside the nucleus of each cell, and the DNA molecule is packaged into cell-like structure. Chromosome is made up of DNA tightly coiled many times around proteins called histones that support its structure. Chromosomes are not visible in the cell nucleus, not even at the microscope. This time is not dividing. Chromosomes has a constriction into two strands or the short chromosome labeled arm, the long chromosome is labeled as and constriction, and that constriction is called as centromere, and the sister chromatids and also the chromosomes remain attached with this. This is the structure of the chromosome. You can see a double helix protein are associated with it, and they together
from a particular structure. Every particular is a particular chromosome, and particular there are particular sequences of genes of each chromosome of each species, and any variation in the structure of chromosomes or in the number of chromosomes leads to the chromosomal aberrations. About the discovery of chromosomes, we can say that these were first described by Strasburger in 1875, and the term chromosome, however, was first used by Voltaire in 1888. They were given the name chromosomes due to their marked affinity for basic types, and their number can be counted easily matter. Move towards chromosomal aberrations again. Any variation in chromosomal structure or number is called as chromosomal aberration. There are two types of chromosomal aberrations, which we can say chromosomal abnormalities also, and these are of two types: numerical abnormalities and structural abnormalities. Structural abnormalities are further of following types: deletion, duplication, inversion, translocation. And numerical abnormalities, there are further two types: aneuploidy and euploidy. And polyploidy is a type of euploidy, you can say. Now moving towards the slide, we see here there are certain structural abnormalities of chromosomes. There is translocation, there is deletion, there is inversion, there is isochromosome, derivative chromosome, insertion, ring chromosome. Now, chromosomes for two types. There is changes in the structure of genes, and when there is change in the number of genes, location of genes remains same, but number of genes is changed, and these changes in the number of genes leads to two structural abnormalities. One is deletion and रोमाना another जी is duplication. रोमाना जी स्लाइड फिर से शेयर कर दीजिए, क्योंकि बीच में किसी ने स्लाइड शेयर करना शुरू कर दी तो आपकी स्लाइड चली गई। फिर से रिज्यूम कर दीजिए स्लाइड शेयरिंग जी। This is a slide: chromosomal structural abnormalities. There is translocation figure, deletion, inversion, isochromosome, derivative chromosome, insertion, and ring chromosome. मैम स्लाइड नहीं शो हो रही है, स्लाइड नहीं शो हो रही है आपकी। फिर से रिज्यूम करिए, वहीं प्रेजेंट नाउ पे जाइए तो रिज्यूम कर दीजिए आप उसको, क्योंकि बीच में दीपाली ने शुरू कर दिया अपना प्रेजेंटेशन तो वो आपका गायब हो गया। यही प्रॉब्लम है इसमें। ये आप दोबारा से शेयर कर दीजिए। जी अब सही है, आप वहीं पे पहुंच जाइए अपनी वाली स्लाइड पे। फिर वो दीपाली त्रिपाठी, ये मैं दीपाली त्रिपाठी को पहले रिमूव कर दूं। आप फिर से शेयर कर दीजिए, आप फिर से शेयर कर दीजिए, फिर से शेयर कर दीजिए स्लाइड एक बार। अभी नहीं दिखाई दे रही है, आप फिर से शेयर कर दीजिए एक बार। तो जब कोई अपनी स्लाइड शेयर करने लगता है तभी जो स्पीकर होता है उसकी स्लाइड गायब हो जाती है। अब ये बात अब उन्होंने दीपाली त्रिपाठी ने 2 बार किया तो मैंने उनको रिमूव कर दिया इसीलिए।
जी 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 certain abnormal chromosome. We can see this slide here is translocation, deletion, inversion, chromosome, derivative chromosome, insertion, ring. Now we can see structural aberrations. As I said, these are the chromosomal aberrations in which organization of the structure of chromosome occurs. Structural aberration में हमारे पास अब दो तरह का है. Changes in the number of genes, where the location of genes is not changed, but the number of genes gets changed due to deletion and duplication. These are the changes in the structure of the chromosome which leads to change in the number of genes. And second is the change in the location of genes. Here, number remains the same, but location of genes is changed, like in inversion and translocation. First, now we will go towards the duplication. Duplication is the occurrence of a segment twice in the same chromosome. कि हमारे पास एक ही क्रोमोसोम होता है और उस एक क्रोमोसोम का सेगमेंट दो बार जो है या जो है हमारे पास वो डुप्लीकेट हो जाता है. दैट इज इन unequal crossing over for inversion or translocated heterozygotes. By the presence of in duplicated region during gene stage. जब उसे क्रॉसिंग ओवर है जब साइनेसिस होता है, साइनेसिस के दौरान जिस क्रोमोसोम्स होती है, तो जो डुप्लीकेटेड रीजन होता है, जिस क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन होता है, तो वो डुप्लीकेटेड पार्ट को छुपाने के लिए वहाँ पे एक लूप सा बनाता है इन ऑर्डर टू गिव द परफेक्ट पेयरिंग विद हिज पार्टनर. नाउ देयर इज डुप्लीकेट टाइप्स. इंट्राक्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले टेंडम डुप्लीकेशन है जो मैं आपको डायग्रामेटिकली आगे बताऊंगी. फिर हमारे पास रिवर्स टेंडम है और उसके बाद इंटर क्रोमोसोमल जो दो क्रोमोसोम्स के बीच में होगा. इंट्रा क्रोमोसोमल में जैसे आपने पीछे में जा रही हूँ फिर से इंट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन जो है ये एक मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी विद फिगर. और फिर हमारे पास इंटर क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन है जिसमें दो क्रोमोसोम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और जो दो यहाँ पे इसकी डिस्प्लेस डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेटेड डुप्लीकेशन. जैसे हमारे पास ये स्लाइड है, सब दिख रही है स्लाइड? जी दिख रही है, दिख रही है. आवाज क्लियर नहीं है लेकिन स्लाइड दिखाई दे रही है. हमारे पास तो यहाँ पे है, आप देख रहे हैं सेगमेंट से 1 2 3 4 सेंट्रल 5 तो 7. सबसे पहले हमारा डुप्लीकेशन आप देख लीजिए कि जो 1 2 3 और डुप्लीकेट जो रीजन हो रहा है 2 रीजन और डुप्लीकेट हो रहा है. उसी डुप्लीकेटेड पार्ट के पास में ही जो नॉर्मल के साथ में नीचे हो रहा है वो डुप्लीकेट हो रहा है. इससे हम में आप हो रहा है क्या हमारे मैम थोड़ा ऑडियो थोड़ा और सही करने की कोशिश कीजिए. ऑडियो क्लियर नहीं हो रहा है आपका. स्लाइड तो विजिबल है लेकिन ऑडियो क्लियर नहीं हो रहा. इफेक्ट हेलो वॉइस इज नॉट क्लियर. जी वॉइस क्लियर नहीं हो रही उतनी. पता वॉइस डिस्टर्ब कर रही है. स्लाइड्स तो सही है, स्लाइड से दिखाई दे रही है. इफेक्ट्स ऑफ डुप्लीकेशन हमारे पास जो डुप्लीकेशन का इफेक्ट है, एक तो ओरिजिन ऑफ न्यू जीन्स मेनली ड्यू टू डुप्लीकेशन रिजल्ट इन एवोल्यूशन. एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स में बी डबल्ड बिकॉज जब जीन डुप्लीकेट होगा तो क्यों जीन जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स. देयरफॉर एंजाइम और इन केस ऑफ ड्रॉप हमने देखा कि वहाँ बाई करेक्टर जो है 16A रीजन एक क्रोमोसोम में वहाँ पे डुप्लीकेट हो जाता है. उस क्रोमोसोम के 16A रीजन की
से वहाँ पे हो जाता है ड्रोसोफिला के साथ, विच इज कॉल्ड एज बारा इरेक्टर, एंड दैट कैरेक्टर जो है वो हमारे पास में नैरो आई शेप हो जाता है ड्रोसोफिला का। तो दीज आर द सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ डुप्लीकेशन। Now, deletion or deficiency. Deletion, another structural aberration, and this deletion means loss of part of chromosome is called as deletion. जब भी हमारे पास एक क्रोमोसोम होगा उसका कोई सर्टन पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा, और हमारे पास एक नया क्रोमोसोम अराइज होगा जिसमें वो पार्ट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज डिलीशन। और इसको ये भी कह सकते हैं कि एन इवेंट इन विच अ पीस ऑफ इज मिस्ड और डिलीटेड, एक ऐसा इवेंट जहाँ पे क्रोमोसोम पीस जो है वो मिस हो जाए या डिलीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज डिलीशन। एंड ड्यू टू डिलीशन वन और मोर जीन्स फ्रॉम क्रोमोसोम्स, एंड डिलीशन जो है फर्स्ट जो डिटेक्ट किया 19 में अपनी स्टडी जब वो कर रहे थे ऑन एक्स क्रोमोसोम्स, it can cause 7 serious genetic diseases. जो deletion है is very much lethal to the organisms. organisms को नहीं कर पाते हैं क्योंकि कभी कभी particular जो है उनकी बॉडी से गायब हो जाते हैं, deletion and be lethal for organism। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास एक स्लाइड है डिलीशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम जो है फर्स्ट क्रोमोसोम, उसमें ब्रेक्स आ रही हैं क्रोमोसोम में, और उस ब्रेक्स की वजह से ये पार्ट जो है ये डिलीट हो रहा है, ये वहां से निकल रहा है, और क्रोमोसोम जो है वो भी छोटी हो रही है बिकॉज सम पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम सेगमेंट इज डिलीटेड और लॉस्ट। एंड डिलीशन इज ऑफ 2 टाइप्स, one is terminal deletion and another is interstitial deletion और intercalary deletion। terminal deletion में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल क्रोमोसोम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके पास A, B, C, D, सेंट्रोमियर और फिर E और F, ये क्रोमोसोम हमारे पास है, और इस क्रोमोसोम में आप देख रहे हैं कि जब नया क्रोमोसोम इससे अराइज होगा तो इसका जो एंड वाला पार्ट है, ए पार्ट या एफ वाला भी हो सकता है, ए वाला भी हो सकता है, कोई भी एंड वाला पार्ट, टर्मिनल पार्ट जब इससे अलग हो जाएगा, इट विल लीड टू अ टाइप ऑफ डिलीशन विच इज कॉल्ड एज टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन हमारे पास डिलीशन की वो टाइप है जहाँ से एक ओरिजिनल क्रोमोसोम से उसका एंड पार्ट जो है, जो बिल्कुल एंड पे होगा, टर्मिनल पार्ट जो होगा उसका लूज हो जाएगा, चाहे वो एक साइड से हो या दूसरी साइड से, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल डिलीशन। इंटरस्टिशियल और इंटरकैलरी डिलीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एंड में नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्रोमोसोम में 2 ब्रेक्स आएंगी। टर्मिनल डिलीशन में आपने देखा कि सिर्फ एंड पे एक ब्रेक आएगा एंड सर्टेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इट विल गेट लॉस्ट। लेकिन इंटरस्टिशियल और इंटरकैलरी डिलीशन में आप देखेंगे कि क्रोमोसोम में 2 ब्रेक्स आएंगी क्रोमोसोम में। जैसे आप ये देख रहे हैं पहली वाली यहाँ पे स्लाइड में कि जो डी और बी है उसके बीच में भी एक ब्रेक आया, सी और ई है उसके बीच में भी एक ब्रेक आया, तो ब्रेक से क्या होगा, जो ये डीसी वाला सेगमेंट है ये अलग हो जाएगा और ये अलग होके निकल जाएगा बाहर, लॉस हो जाएगा, एंड जो हमारे पास क्रोमोसोम पीछे रहेगा इट इज कॉल्ड एज डिलीटेड क्रोमोसोम। और इसमें कौन सी डिलीशन हुई, इंटरस्टिशियल या इंटरकैलरी डिलीशन। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में से कोई सेगमेंट जो है इससे निकल के आ गया है। दिस टाइप ऑफ डिलीशन इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल और इंटरकैलरी डिलीशन। अब जेनेटिक सिग्निफिकेंस क्या है डिलीशन की, जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, मान लीजिए अगर उनमें होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें अगर कोई जीन जो है वो कोई दोनों क्रोमोसोम्स पे लूज हो जाता है, दोनों क्रोमोसोम्स में डिलीशन हो जाती है, वही पर्टिकुलर पार्ट, वही पर्टिकुलर सेगमेंट में वो सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि वो कंप्लीट सेट ऑफ जीन जो है इट इज लैक देयर, तो इसमें से लीथल इफेक्ट होता है। दूसरा हमारे पास जो जेनेटिक सिग्निफिकेंस है डिलीशन का वो ये है कि एक टाइप होती है सीडोडोमिनेंस। सीडोडोमिनेंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है, हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम्स हैं, उसमें एक क्रोमोसोम में डोमिनेंट जीन्स है, दूसरे क्रोमोसोम में रिसेसिव जीन है। मान लीजिए एक सेगमेंट जो है डोमिनेंट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम से लूज हो गया, तो जब वो लूज हो गया तो उसके तो अपोजिट में होमोलॉगस क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन होगा। वो रिसेसिव जीन को एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अपना जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वहाँ पे वो अपने आप को जो है
एक्सप्रेस कर सके। ये जो फर्स्ट डोमिनेंस है, दिस इज कॉल्ड एज सीरो डोमिनेंस। ऐसे तो उसको डोमिनेंट जीन को कभी मौका ही नहीं मिलता कि वह इस रिसेसिव जीन को मौका नहीं मिलता कि वह अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। लेकिन जब उसका पार्टनर जो है डोमिनेंट साइड पे लूज हो जाएगा तो उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, दिस इज कॉल्ड सीरो डोमिनेंस। एंड इट इज यूटिलाइज्ड फॉर लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन important in creating chromosomal. Hello. Hello. Is it audible? Yeah, it is audible. Please. Is it audible? Yes, it is audible. Another अभी तक था audible. हाँ, अभी भी था. Now it is another. जी sir, thank you sir. You have 10 minutes. Translation 10 में आप minutes. देखेंगे 10 minutes left. Okay, sir, I will try to wind up. Translocation, integration of a chromosome segment into a non-homologous chromosome is called as translocation. देखिए आपने एक टर्म सुना होगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में हम क्या देखते हैं कि there occurs the exchange of segments between homologous chromosomes. तो आप मान लीजिए ट्रांसलोकेशन थोड़ा उससे अपोजिट है। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स तो होगा यहाँ पे, लेकिन किसके बीच में होगा? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में। तो जब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है उस टाइप को हम ट्रांसलोकेशन कह सकते हैं। और इसमें शिफ्टिंग होती है क्रोमोसोम दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। और ये फिनोमिनन ट्रांसलोकेशन का डिस्कवर्ड बाय सीबी ब्रिजेस इन 1923 एंड बाय गोडीवरीज ऑइनर लेमार्कियाना। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन है कुछ। सबसे पहले हमारे पास सिंपल ट्रांसलोकेशन है। सिंपल ट्रांसलोकेशन में होगा जो टर्मिनल सेगमेंट क्रोमोसोम का वो इंटीग्रेट होगा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के एंड पे। सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है टर्मिनल सेगमेंट वो वहां से उठा और वो कहाँ चला गया? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया। इस टाइप ट्रांसलोकेशन इज कॉल्ड एज सिंपल ट्रांसलोकेशन। एसिडल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं तो उनमें इक्वली एक्सचेंज होंगे सेगमेंट्स। अगर एक क्रोमोसोम उस बी क्रोमोसोम को अपना सेगमेंट दे रहा है, बी क्रोमोसोम जो है ए क्रोमोसोम को अपना सेगमेंट देगा। दैट इज कॉल्ड जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फिगर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इससे पहले वाले में, जैसे ये क्रोमोसोम है, इसमें सेगमेंट से A B C D E F G H। यहाँ पे देख रहे हैं कि BC जो है अपनी उस पोजीशन से उठ कहाँ चला गया? F। तो ये मेरे पास एक जो ट्रांसलोकेशन है एक ही क्रोमोसोम में ये हो रहा है, सिंगल क्रोमोसोम में इन्वॉल्व है। ये भी इसकी टाइप सी है ट्रांसलोकेशन की, सिंगल क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन नॉन रेसिप्रोकल। दूसरी नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में कोई दो क्रोमोसोम की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, एक ही क्रोमोसोम और वो सेगमेंट जो है यहाँ से उठ के दूसरी जगह जा रहा है। दैट इज कॉल्ड नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। दूसरा है नॉन रेसिप्रोकल। यहाँ पे आप देखें दो नॉन होमोलॉगस हैं और दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या हो रहा है? जो बी से पार्ट है ए बी सी डी ई एफ का, हमारे एम एन ओ पी क्यू आर, ये दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। तो बी सी पार्ट उठ के एम एन वाले क्रोमोसोम के पास जा रहा है, लेकिन एम एन का कोई भी पार्ट ए बी के पास नहीं जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, या जिसको हम कह सकते हैं नॉन रेसिप्रोकल, क्योंकि ने रेसिप्रोकल किया। ए बी ने अपना ए बी सी ई एफ जी एच अपना बी सी दे दिया एम एन ओ पी क्यू आर को, लेकिन वहां से एक्सचेंज में उसने कुछ नहीं लिया। दिस इज कॉल्ड एज नॉन रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। इंटर क्रोमोसोमल इसलिए बिकॉज यहाँ पे दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है बीसी सेगमेंट की एम एन वाले क्रोमोसोम के पार्ट में। नेक्स्ट हमारे पास रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है, जहां पे फिर से दो क्रोमोसोम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। दोनों क्रोमोसोम्स नॉन होमोलॉगस होंगे, लेकिन यहाँ पे फुल्ली एक्सचेंज होगा। अगर ए बी जो है वो उठ के एम एन ओ पी क्यू आर के पास जा रहा है तो एम एन वो वहां से उठ के एम एन ओ जो है वहां से उठ के वो इसके पास आ रहा है पहले वाले क्रोमोसोम। तो यहाँ पे फुल जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हुआ, लेकिन किसके बीच में हुआ? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में। This is called as reciprocal interchromosomal translocation, which is different from the जहाँ पे एक जो If
Effects of translocation: it causes diseases in human beings such as cancer and infertility. It may cause changes in chromosomes and also in gene combinations, promoting variation. Now, क्रोमोसोमल एब्रिएशन का हमारे पास लास्ट पार्ट है इन्वर्जन है कि इसमें क्रोमोसोम जो एटीपी उसका है एंड by one in 1901 and detected the presence of inversion loop during form. आप देखते हैं क्रॉसिंग ओवर होगी उसका जो है इन्वर्ट पार्ट का क्रोमोसोम में इन्वर्शन क्या होगा, फॉर्मेशन होगा पे उसमें लूप बनता है. तो यहाँ पे पैरासेंट्रिक इन्वर्शन में what is said we have inversions are of two types, paracentric inversion and pericentric inversion. यहाँ पे क्या स्लाइड है हमारे पास, पैरासेंट्रिक इन्वर्शन कि इट डज नॉट इंक्लूड सेंट्रोमियर. यहाँ पे कोई भी सेंट्रोमियर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ है. आप देखिए बी सी डी ई एफ जी एच ई और के बीच में लेकिन इनके सेट है बी सी डी इन्वर्ट होके अब डी सी ई आएगा तो वो यहाँ पे ऐसे बना के यहाँ पे मिलके ए डी सी बी ई एफ जी. यहाँ पे सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है. यहाँ पे वर्ट हो गया सेगमेंट जो सेगमेंट बीच में कहीं पे भी इट डज नॉट इंक्लूड सेंट्रोमियर. सेकंड हमारे पास पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन. पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में हमारे पास क्या है, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन देख रहे हैं जो इन्वर्ट हो रहा है उसमें भी यहाँ पे हमारे पास ई है तो इसके बीच में सेंट्रोमियर पार्ट यहाँ पे it helps to retain the original gene combination by crossing over frequency. क्रॉसिंग ओवर करने की कोशिश करेंगे बट हम पे जो वर्क हो जाएगा पूरा क्रोमोसोम का तो पूरी तरह से प्यारे नहीं हो पाते. तो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे इन्वर्जन and get by polymorphism population including gender biological fitness ability. ये हमारे पास पार्ट है. नेक्स्ट हमारी थोड़ा सा पढ़ूंगा. आ रही है स्लाइड? हेलो हेलो Voice is clear. Slides are visible, but voice is not clear actually. Okay, you have 2 minutes left, so you can finish in 2 minutes, please. Okay, please go ahead. आ रही है स्लाइड? हाँ स्लाइड आ रही है मैम, स्लाइड आ रही है. आप फिनिश करिए, 2 मिनट बचे हैं बस, आप फिनिश करिए. Second is numerical aberration. Numerical aberration is the following types: aneuploidy and euploidy. Aneuploidy is further of two types: hyperploidy and hypoploidy. And hyperploidy is further of two types: trisomy, tetrasomy. Hypoploidy is further of two types: monosomy and nullisomy. Euploidy is of following types: monoploidy, diploidy and triploidy. एप्लाइडी में आप देखेंगे कि यहाँ पे जब क्रोमोसोम नंबर जो है यहाँ पे अब चेंज होगा न्यूमेरिकल एब्रिएशन में, और एन्यूप्लाइडी में जब क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है दैट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ द बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो यूप्लाइडी में हम देखेंगे जब भी क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ द बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आगे, सॉरी. ये आप कंक्लूड कर लीजिए मैडम.
नंबर देखिए क्रोमोसोम्स के हो जाते हैं। मैंने आपको कहा न्यूक्लियोटाइड हमारे पास दूसरा यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड क्रोमोसोम नंबर जो है भी उनका क्रोमोसोम नंबर है 47 नंबर आएगा 48 आएगा वो चीज मैम आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। क्या है प्रॉब्लम आई कंक्लूड हियर नाउ थैंक्स फॉर Okay, okay. Okay, thank you so much. Over to you, Dr. Sunita, if she is present here. Dr. Preeti Singh. हेलो सर जी। हाँ, डॉक्टर प्रीति सिंह, आप नीता मैडम को शायद कुछ नाम आ गया है, आप मैम का धन्यवाद अदा कर दीजिए। तो फिर उससे पहले कोई क्वेश्चन अगर कुछ पूछना चाहता है तो आप बोल दीजिए, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो या कोई कुछ जानना चाहता हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का वेलकम है। वो अगर रोमाना मैडम से कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहे तो वो लोग अपना क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं। बच्चों को एक कंफ्यूजन है, अभी आप लोगों को वॉइस में शायद प्रॉब्लम थी बट स्लाइड्स तो बहुत ही क्लियर थी। ये एक क्वेश्चन वेस्ट बंगाल से आया है, मिस्टर संदीप प्रमाणिक जी का। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी? मैम कैन यू हियर मी? रोमाना मैम, मैम आप अनम्यूट करिए पहले प्लीज। हाँ रोमाना मैम, आप अनम्यूट करिए। The question which is being asked by the Mr. Sandeep Pramanik from West Bengal, that is there, tell me the basic difference between hyperploidy and hypoploidy. Yes sir, hyperploidy, I am audible or not? Yes, you are audible. Hyperploidy, hypoploidy, these are the two types of aneuploidy. Hyperploidy when there is increase in chromosome number, hypoploidy is there is decrease in the number. For example, it's a 46 is the normal chromosome number in human beings, and if there is change in the chromosome number which leads to increase in the chromosome number, it is 47 or 48, it is called as hyperploidy. And if there is change in the chromosome which leads to decrease in the chromosome number, like there will be 44 or 43 or 45, that is called as hypoploidy. And example of hypoploidy, you must have heard about Turner syndrome. And hypoploidy is the you can say the example of 21 trisomy जो होती है human being syndrome. Okay, ma'am, thank you. Now, Next question is being asked by Dr. Hamid Khan, that the chromosomal aberration is useful only plants or also in animals? Romana ma'am, did you hear me? Is it beneficial for plants or it is also beneficial, useful in animals too? mostly, hello, am I audible? Yeah. In animals, mostly it is seen that it produces lethal effect. It produces certain kinds of abnormalities in animals. As far as plants are concerned, in plant society, etc., it is very much good for the plants. It gives good seed covers, large fruit size, etc. But as far as animals are concerned, mostly the animals those show the lethal effects, or they show certain types of abnormalities. Those are produced due to chromosomal aberration because they cannot tolerate chromosomal aberration. Okay, ma'am. Thank you so much. So over to you, Dr. Preeti. Thank you. Please say a vote of thanks and now call it a day. फिर समाप्त करें। थैंक यू सर, थैंक यू रोमाना मैम।
आपका लेक्चर बहुत ही यूजफुल था सारे स्टूडेंट्स के लिए और हम लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिला। बस थोड़ा सा साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, नेटवर्क प्रॉब्लम, इट इज नेटवर्क प्रॉब्लम। आपका लेक्चर अदरवाइज बहुत ही अच्छा था, सारी स्लाइड्स बहुत ही क्लियरली विजिबल थी। एंड थैंक यू मैम फॉर प्रेजेंटिंग सच पेपर। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं एंड टीचर्स हैं, सभी लोगों को थैंक यू आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए। कल आप सभी लोगों का वेलकम है क्योंकि कल मेरा लेक्चर है, तो आई होप कि आप सब लोग टाइम पर प्रेजेंट रहेंगे और हम लोगों को साथ देंगे ये नॉलेज शेयर करने के लिए। ओके, थैंक यू। Thank you so much. Thank you.